and welcome to IC Mumbai. नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आईसी मुंबई में। We are so glad that you have joined us online tonight. और हम सच में बहुत ही खुश है कि आज की शाम आप लोग हमारे साथ में जुड़ And पाए। I'm sure, Jenny, this night is going to be awesome. और मैं जानता हूँ विंसन कि आज की शाम की सभा जो है बहुत ही अद्भुत होगा। And right now we're going to praise God together. और इस समय हम जो है एकत्रित स्तुति करेंगे। So why don't you get yourselves ready to praise God? तो क्यों ना आप अपने आप को तैयार कर ले ताकि आप लोग भी प्रभु की स्तुति करें। I'd like to invite Johnny to lead us into praise. और मैं जॉनी को न्योता देना चाहूंगा ताकि वो हमें स्तुति में अगुवाई करे। I come to you with a grateful heart for the things you've done. I come to you giving all my praise for this day you've made. You're amazing, forever reigning, my God. There's no one like you and none beside you, my God. जहाँ भी मैं जाऊँ नाम तेरा उठाऊँ, जो भी करूँ स्तुति दूँ तुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ नाम तेरा उठाऊँ, नाम उठाए हम, let's go, नाम उठाए हम, नाम उठाए हम, यीशुए नाम उठाए हम, ये नाम उठाए हम। I come to you with a sacrifice, Lord, to lift you high. I come to you every night and day, Lord, to give you praise. You're amazing, forever reigning, my God. There's no one like you and none besides you, my God. Oh, जहाँ भी मैं जाऊँ नाम तेरा उठाऊँ, जो भी करूँ स्तुति दूँ तुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ नाम तेरा उठाऊँ, नाम उठाए हम, नाम उठाए हम, नाम उठाए हम, ओ नाम उठाए हम, नाम उठाए हम। Whatever comes my way, I will lift you up, giving you my praise. I will never stop. You're surrounding me, your love overflows. I will lift your name everywhere I go. जहाँ भी मैं जाऊँ नाम तेरा उठाऊँ, जो भी करूँ स्तुति दूँ तुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ नाम तेरा उठाऊँ, नाम उठाए हम, नाम उठाए हम, नाम उठाए हम, ओ नाम उठाए हम, नाम उठाए हम। Whatever comes my way, I will lift you up, giving you my praise. I will never stop. You're surrounding me, your love overflows. I will lift your name everywhere I go. Come on, church, give him praise tonight. Give him praise tonight, Jesus. That was an amazing time of praise. और सच में वो कितना अद्भुत समय था स्तुति का। And Jenny, I love dancing. और विंस्टन मुझे बहुत ही पसंद है नाचना। All right now it's time to welcome our special guest. ठीक है, ये समय है ताकि हम अपने खास मेहमान का स्वागत करें। And if you're watching this video for the first time or if you're joining IC Mumbai online for the first time, you are our special guest. यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो या फिर हमारे साथ में ऑनलाइन में पहली बार जुड़े हो तो आप हमारे बहुत ही खास मेहमान हो। We want to say a big hello to you from IC Mumbai family. और पूरे आईसी मुंबई के परिवार की तरफ से हम आपको एक बड़ा सा नमस्ते कहना चाहते
चाहेंगे। thank you for joining us. And if you're new, why don't you click on the link in the comment section and one of our team members will call you to just say hello. तो धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया जाएगा, तो आप क्यों ना उस लिंक पर क्लिक करें और अपनी जानकारियों को भर दे, ताकि हम में से एक व्यक्ति आपके संपर्क में रहेगा इस सप्ताह। Awesome. बहुत बढ़िया। All right now it's time for announcements and I've got a few exciting announcements. ठीक है, ये समय है सूचनाओं का, और मेरे पास में कुछ उत्साहित सूचनाएं हैं। And something exciting is happening every week, Jenny. और हर सप्ताह कुछ ना कुछ अद्भुत चीजें होती रहती है। And what do we do? और हम क्या करते हैं? First thing, we pray together every week. सबसे पहला हम हर सप्ताह जो है प्रार्थना करते हैं। Every Wednesday at 7 p.m. as church we come together online and we pray together. और हर बुधवार को जो है कलीसिया होने के नाते हम ऑनलाइन मिलते हैं और एकत्रित प्रार्थना करते हैं। So if you want to join us, why don't you let us know in the comment section and our team will make sure that you join us in prayer. यदि आपको भी हमारे साथ में जुड़ना है तो क्यों ना आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दें कि आपको हमारे साथ में जुड़ना है, और हमारा जो एक टीम है वो आपको मदद करेगा ताकि आप हमारे साथ में प्रार्थना में जुड़े। All right, second announcement. ठीक है, दूसरा सूचना, Connect Group Sunday, Jenny. कनेक्ट ग्रुप संडे वेडनेसडे। Every Sunday we have Connect Group Sunday happening all over the city. हर रविवार जो है कनेक्ट ग्रुप संडे हो रहा है पूरे शहर में, मुंबई शहर में। So why don't you make yourself available for Connect Group Sunday? तो क्यों ना आप अपने आप को कहीं पर बिजी ना रहे, आप लोग तैयार रहे कनेक्ट ग्रुप संडे के And लिए। right now, if you're watching this video by yourself, then make sure that you let us know that you want to join Connect Group Sunday, and we'll make sure that you join us in Connect Group तो Sunday. यदि आप इस समय अकेले देख रहे हो इस वीडियो को, तो क्यों ना आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दे, ताकि हम अगली बार जो है आपको एक कनेक्ट ग्रुप में भेज सके। All right, that's all from me, and right now I'll invite Abhinesh to share something around the offering. ठीक है, मेरे तरफ से इतना ही, और मैं अभी अभिनेश को बुलाना चाहूंगा ताकि वो हमें भेंट और दशमांश में अगुवाई करे। As I share a small scripture from the Bible, और जैसे मैं बाइबल में से छोटा वचन आपके साथ में बांटना चाहूंगा, why don't you note down the details that's there on the screen? क्यों ना आप स्क्रीन पर दिए गए जानकारियों को नोट डाउन कर लें। So we'll read from 1 Timothy chapter 6 verse 9 and 10. और हम पढ़ेंगे पहला तिमोथी का किताब 6 अध्याय 9 और 10वां वचन। This is what it says. और वचन ये कहता है, But people who long to be rich fall into temptations and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. पर जो धनी होना चाहता है वे ऐसी परीक्षा और फांदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसों में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देते हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देते हैं। For the love of money is the root of all kinds of evil, and some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार के बुराइयों के जड़ होता है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलना बना लिया है। So this is what while I was reading the scripture, God spoke to me about it. और जैसे मैं ये वचन पढ़ रहा था, प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझसे बातें की, And the question that came up to me was, और जो सवाल मुझ पर मेरी तरफ आया वो ये था, how are you using what God gives you? प्रभु आपको जो देता है आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो? So pursuing on to or holding on to money tightly can ruin us. तो हम जो पैसा जकड़ने की या फिर जो पैसों का बचत करने की कोशिश करते, शायद ही हमें विनाश की तरफ लेकर जाता है। In fact, in the scripture, the words that are used are harmful and destruction to describe the result of loving relationship with money. तो हम जो रिश्ता पैसों के साथ में रखते हैं, जितना प्रेम हम पैसों के साथ में रखते हैं, यहाँ पर ऐसे कुछ शब्दों के द्वारा बताया गया या फिर उसे समझाया गया है, जैसे कि हानिकारक। God has given us resources so that we can help others. प्रभु ने जो है हमें चीजों को दिया है ताकि हम किसी और का मदद कर सकते In a हैं, way, finance is given to us because we can help others. और इसी तरीके से पैसे भी हमें इसलिए दिए गए हैं ताकि हम किसी और का मदद करें। So when we adopt that stance, when we know that thing, तो जब हम ये चीज को जानते हैं, it becomes easier to be open-handed.
तो ये बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए, ताकि हम जो है खुले रूप में या फिर अपने हाथों को फैलाकर वहाँ पर किसी की मदद करें। So we need to use it to love others, तो हमको जो है इसका इस्तेमाल करना है ताकि हम दूसरे से प्रेम कर सके, to build up God's kingdom ताकि हम प्रभु का राज्य बढ़ा सके या फिर बांध सके, and demonstrate our trust in the Lord. ताकि हम जो है हमारा विश्वास प्रभु में दिखा सके। Right now, we have this opportunity to ask ourselves, और इस समय में हमारे पास में ये मौका है ताकि हम अपने आप से ये सवाल करें, how am I using what God has given me? मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ उन चीज़ों को जो प्रभु ने मुझे दिया है। Am I close-handed, क्या मैं जकड़ कर रखता हूँ अपने हाथों को, अपनी मुट्ठी को बंद किए, or am I generous with my finances? या फिर मैं दानी बनता हूँ मेरे पैसों को लेकर। Let's be generous during this time and give God. तो क्यों ना इस समय हम जो है दानी बने और प्रभु के राज्य में बोए। Come, let's all pray. तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, we right now ask for a generous heart. प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इस समय दानी हृदय के लिए। We ask for an open hand, Lord Jesus, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ताकि हमारी मुट्ठी जो है खुली रहे, so that whatever resources that you have given us, whatever finances that you have given us, we can sow into your kingdom, Lord God. ताकि आपने हमें जो भी ज़रूरतों को दिया है या फिर जो भी आर्थिक हमें दिया है प्रभु, हम उसे दानी रूप से इस्तेमाल करें, So that your kingdom is built, Lord God. ताकि आपका राज्य बंध सके। We don't want to hold it to ourselves, but we want to love others and help others and build the kingdom, Lord Jesus. हमें अपने आप में ही सीमित नहीं रखना है, लेकिन हमें जो है दूसरों को आशीष करना है इन चीज़ों के द्वारा और आपका राज्य बढ़ाना है। Lord, make us a generous giver, Lord God. और प्रभु हमें एक दानी इंसान बनाना। We thank you for this time, Lord Jesus. हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए And we प्रभु, pray this prayer in your mighty name. Amen. और हम इस प्रार्थना को आपके मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। As you give, let's all stand up and let's all worship God. और जैसे हम प्रभु के राज्य में बोते हैं, क्यों ना हम एकत्रित खड़े हो जाए और प्रभु की आराधना And I'll करें। invite Johnny to lead us in worship. और मैं जॉनी को न्योता देना चाहूंगा ताकि वो हमें आराधना में अगुवाई करे। We worship you, Jesus. We worship your name. You are here, you're moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, you're working in this place. I worship you, I worship you. You are here, you're moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, you're working in this place. I worship you, I worship you. तू ही मार्गदर्शक अद्भुतकारी, वादा निभाए नूर अंधकार में, प्रभु तू ही है वही। मार्गदर्शक अद्भुतकारी, वादा निभाए नूर अंधकार में, प्रभु तू ही है वही। You are here, you're touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, you're healing every heart. I worship you, I worship you. You're turning lives, you are here, you're turning lives around. I worship you, I worship you. You are here,
You're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you. तू ही मार्गदर्शक अद्भुतकारी वादा निभाए नूर अंधकार में प्रभु तू ही है वही मार्गदर्शक अद्भुतकारी वादा निभाए नूर अंधकार में प्रभु तू ही है वही मार्गदर्शक अद्भुतकारी वादा निभाए नूर अंधकार में प्रभु तू ही है वही तू ही मार्गदर्शक अद्भुतकारी वादा निभाए नूर अंधकार में प्रभु तू ही है वही 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 ओ मार्गदर्शक अद्भुतकारी वादा निभाए नूर अंधकार में प्रभु तू ही है वही हो तू ही है वही Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, yeah. मार्गदर्शक अद्भुतकारी वादा निभाए नूर अंधकार में प्रभु तू ही है वही हे मार्गदर्शक अद्भुतकारी वादा निभाए नूर अंधकार में प्रभु तू ही है वही मार्गदर्शक अद्भुतकारी वादा निभाए नूर अंधकार में प्रभु तू ही है वही वो मार्गदर्शक अद्भुतकारी वादा निभाए नूर अंधकार में प्रभु तू ही है वही तू ही है वही तू ही है वही तू ही है वही यीशुए तेरा नाम ऊंचा उठाए यीशुए तू ही है वही तू ही है वही तू ही है वही तू ही है वही मार्गदर्शक हो तेरा नाम ऊंचा उठाए
Yeshua. Oh, we worship your name. We lift your name on high. We lift your name on high. Tu hi hai wahi. Lord Jesus, we give this time into your hand. प्रभु यीशु, ये समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं You take control, Lord. और आप इस समय को अपने ताबे में लीजिए Every word that I speak, Lord, let it come from you alone. और हर शब्द जो मैं बोलने जाती हूँ प्रभु वो आपकी तरफ से हो And let it touch people's heart. और मदद करना ताकि वो लोगों के हृदय तक पहुँचे And let there be a shift of mindset in people tonight. और मदद करना ताकि लोगों के सोच में एक बदलाव आए आज की शाम You take control. और आप अपने ताबे में I give लीजिए everything into your hand. और मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ In Jesus' name I pray. और यीशु के नाम में मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ Amen. आमीन। So, church, the first month of 2021 is almost about to end. तो कलीसिया पहला महीना जो 2021 जो साल है उसका बस खत्म ही होने वाला है And we started this year on a positive note. और हमने इस साल का शुरुआत जो है एक अच्छे समय से शुरुआत किया And I would like to encourage you with a positive thing today. और मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगी एक सकारात्मक सोच के साथ में God has put this one thing in my heart for today. और ये एक चीज़ प्रभु ने मेरे हृदय पे डाला आज के दिन के लिए It's a question that how are we living? और ये एक सवाल है कि हम कैसे जी रहे हैं Are we living our life to its fullest? तो क्या हम अपने जीवन का अच्छा लाभ उठा रहे हैं Are we having all our blessings in abundance? जैसे क्या हम अपने सारे आशीषों को अपने जीवन में पाते हैं या फिर बहुतायत में रहते हैं Are we satisfied of things going on in our lives? क्या हम संतुष्ट हैं उन सारी चीज़ों को लेकर जो अपने जीवन में हो रही है Sometimes things are better and we are happy about it. और कभी कभी चीज़ें जो है अच्छी होती है और हम खुश होते हैं उन बातों को लेकर Sometimes things don't work according to our plans, और कभी कभी चीज़ें हमारे सोच के अनुसार नहीं होती है which makes us sad. और जो हमें बहुत ही निराश कर देती है या फिर उदास कर देती है That means our happiness sometimes depends on the situations. उसका मतलब यह है कि हमारी खुशियाँ जो है हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें होती है उनका एक प्रतीक है यानी कि जहाँ पर जैसा होता है हमारा खुशी या फिर उदास होना भी उस पर निर्भर करता है My question is, can we be happy, glad, joyful, irrespective of our situation? मेरा सवाल यह है कि मायने नहीं रखता है कि हम कैसे परिस्थिति में हैं तो क्या ये परिस्थिति हमें खुश रखती है या फिर मतलब वो परिस्थिति हमें खुश रखना चाहिए So my question, तो मेरा सवाल यह too है many questions, Jenny. बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं प्रिया But this one question for this year, every time you have to think of this question. और लेकिन ये साल के लिए ये एक सवाल है और हर बार आपको ये सवाल के बारे में सोचना है What is that one thing we need to do as a believer? एक विश्वासी होने के नाते में वो एक कौन सी चीज़ है जो हमें करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है Are you ready to listen to the answer? तो क्या आप तैयार हो जवाब के लिए It is to live. और जवाब ये है जीना There is a verse in Galatians chapter 2 verse 20. और गलतियों के किताब में दूसरा अध्याय 20 वचन में एक वचन है एक बात कही गई है My old self has been crucified with Christ. और मेरा जो जुना आत्मा है या फिर जो मैं जुना मेरा जीवन है वो प्रभु के साथ में उस क्रूस पर न्योछावर किया गया है It is no longer I who live, और उसके बाद से जो है मैं नहीं जीता हूँ but Christ who lives in me. लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो मुझ में जीता है So I live in this earthly body by trusting in the Son of God. तो मैं उस प्रभु के पुत्र यानी कि यीशु मसीह के नाम में जो है मैं इस दुनिया में जीवित हूँ या फिर जीता हूँ Who loved me and gave himself for me. जो मुझसे बहुत प्रेम करता है और उसने अपने आप को जो है उस क्रूस पर न्योछावर किया According to this verse, और ये वचन के अनुसार once we accept Jesus, एक ही बार हम यीशु को जो अपने जीवन में लेते हैं the old has gone and the new has come. तो जुनी चीजें बीत गई है और नया आ चुका है And our life is not ours, but it's of Jesus. और हमारा जीवन हमारा खुद का नहीं होता लेकिन यीशु का होता है But this verse particularly says this one thing. लेकिन ये वचन एक चीज जो है बहुत खास रूप में कहता है We are to live by trusting God. हमको जो है जीना प्रभु पर विश्वास रखते हुए So what is real living, church?
तो क्या है सच में जीना, इसका मतलब? If you see, a life lived to the fullest is the real living. That's all. मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, यदि आप देखते हो कि आप बहुतायत से यानी कि पूर्ण रीति से जीते हो, बस वही जीना है। What is living to the fullest, Jenny? और पूर्ण रीति से जीना, उसका मतलब क्या है? Living without stress and worry. उसका मतलब ये है कि हम चिंता या फिर कोई दबाव को लेकर नहीं जीते हैं, Living without the fear of future. और आगे क्या होने वाला है, भविष्य को सोचकर जो चिंतित होते हैं हम लोग, उसको सोचे बिना जीना है। Having your own safe place. और आपका खुद का एक सुरक्षित जगह होना, Fulfilling all your heart's desires. और आपके हृदय में कि जितने भी आपकी सोच है वो सारी चीज़ों को पूरा करना। And the most basic, और सबसे पहला, food, clothing and shelter. खाना, मकान और कपड़े। Above all, an assurance about eternity. और ये सारे चीज़ों से ऊपर, इन सारे चीज़ों से परे एक प्रभु की ओर से मिलना कि हाँ, हम सुरक्षित हैं या फिर हम सही हैं। So this pretty much sums up a definition of satisfied life. तो ये सब चीज़ें हमें ये बताती है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। This verse says, "So I live in this earthly body तो वचन ये कहता है कि मैं जो हूँ इस पृथ्वी में जीता हूँ by trusting the Son of God." और प्रभु के पुत्र पर विश्वास करते हुए। It means we are living in the earth उसका मतलब ये है कि हम इस पृथ्वी पर जीते हैं, not by our own strength, और हम खुद के ताकत से नहीं, but by trusting the Lord. लेकिन प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा। So what if तो क्या अगर we don't trust in Lord and we live in earthly manners according to this world? तो यदि हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं और विश्वास किए बिना इस पृथ्वी पर जीते हैं, तो We might be able to attain all those things I mentioned above. और मैंने जिन जिन चीज़ों के बारे में बात किया, हम शायद वो सारी चीज़ों को अपने जीवन में पा सकते हैं, But it would cost us great efforts. लेकिन उसके लिए जो है बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, And we won't have an assurance of satisfaction. और हमारे पास में जो है वो एक चीज़ हमारे जीवन में नहीं रहेगा कि हाँ, मेरे पास में सब कुछ है, Some or the other things will be left out. और कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होगी जो शायद आपके जीवन में नहीं है या फिर उसकी कमी है। Because as humans, we tend to make mistakes. क्योंकि इंसान होने के नाते हम जो है गलतियाँ करते हैं। You might ask like, how come if we have all those things mentioned about, we would be happy. We won't need God. आप Some शायद- people might think like that. आप शायद ये सवाल पूछ सकते हो कि ये सारी चीज़ें जो आपने बताई, ये सारी चीज़ें यदि मेरे पास में होती है तो मैं खुश रहूँगी, तो प्रभु की ज़रूरत क्या है? If that was true, यदि वो सच रहता था, you won't see successful and influential people committing suicide. आप जो है ये नहीं देखोगे कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनका बहुत बड़ा व्यापार है, वो लोग जो है अपने आप को मारते नहीं, आत्महत्या नहीं करते। That pretty much sums up that earthly manner of living doesn't give you satisfaction. तो ये हमें ये बताता है कि इस पृथ्वी में जो भी खुशियाँ या फिर जो भी चीज़ें हमें मिलती है वो हमें संतुष्ट नहीं रखती। So what happens when we trust in the Lord तो क्या होता है जब हम प्रभु पर विश्वास करते for हैं living our life? हमारा जीवन जीने के लिए? It's the only way we truly live, church. और यही एक तरीका है जो हम पूर्ण रीति से अपने जीवन को जी सकते हैं। God talks to us through Bible verses. और प्रभु जो है वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है कलीसिया। I won't preach something that I think, Jenny. और मैं ऐसा कुछ प्रचार नहीं करूंगी जो मैं सोचती हूँ, I will only preach what God says. और मैं वही प्रचार करूंगी जो प्रभु कहता है। Like we said, to live your life to the fullest, you need few things. जैसे हमने कहा कि आपको अपना जीवन बहुतायत में जीने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, And Bible has an answer for it. और बाइबल में हर एक चीज़ का जवाब है। If you're thinking about food, clothes and shelter, यदि आप ये सोचते हो रोटी, कपड़ा और मकान, there is a verse in Matthew 6, और मत्ती के सुसमाचार में 6 अध्याय में एक वचन है, verse 25 and 26. 25 और 26 वचन ये कहता Jesus है, says here, और यीशु ये कहता है यहाँ पर, that is why I tell you इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ not to worry about everyday life, और आपके रोजमर्रा के जीवन के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। whether you have enough food and drink, भले आपके पास में खाना ज्यादा है या फिर कम पड़ता हो, or enough clothes to wear. या फिर कपड़े आपके पास में है या नहीं। Isn't life more than food and your body, more than clothing? क्या आपका जीवन आपके कपड़ों से और खाने से अधिक नहीं है या फिर बढ़कर नहीं है? Look at the birds.
और उन पक्षियों को देखो, They don't plant वो लोग जो है उगाते नहीं हैं, or harvest or store foods in barns. या फिर वो कटाई नहीं करते, या फिर खाने को बचा कर नहीं रखते हैं, For your heavenly Father feeds them. क्योंकि आसमानी खुदा जो है उनको खाना देता है। And aren't you far more valuable to Him than they are? तो क्या आप उनसे भी ज्यादा मूल्यवान नहीं हो उस पिता के लिए? So it's clear. God says you don't have to worry about your food, clothing, and shelter. तो हाँ, यहाँ पर साफ रीति से लिखा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में। He'll take care of it. वो चीजों की चिंता वो करेगा। If you're talking about stress and worry, और यदि आप चिंता के बारे में बात करते हो, you'll be like, Priya, you don't know what kind of stress I'm going through. I'm so much worried. Nobody can understand me. और आप शायद ये बोले कि प्रिया, तुमको नहीं पता है कि मैं कौन से चिंता को लेकर चलता हूँ, आपको नहीं समझ में आता है, आपको नहीं पता है। Of course, I will never know. हाँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा, But God knows. लेकिन प्रभु जानता है। In 1 Peter 5:7 it says, पहला पत्रस 5:7. 5वां अध्याय 7वां वचन ये कहता है, Give all your worries आपकी सारी चिंताओं को and cares to God, और आपकी जो भी चिंता है वो आप प्रभु को दे दो, for He cares about you. क्योंकि वो आपकी चिंता करता है या फिर वो आपका ख्याल रखता है। If you're talking about safe place, तो यदि आप बात करते हो सुरक्षित जगह के बारे में, you're like, I can't trust people. Too many people have broken me. आप शायद ये बोले कि नहीं, मैं लोगों पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे दिल को दुखाया है, I have faced so many rejections in my life. और मैंने अपने जीवन में कितने ही लोगों ने मुझे धुतकारा है, You cannot know what I am going through. और आप सच में नहीं जान सकते हो कि मैं अपने जीवन में क्या होकर Then गुजरता there हूँ। is a verse for you. तो आपके लिए एक वचन है यहाँ पर, You should open Psalms chapter 46 verse 1. और आपको जो है भजन संहिता खोलना है, भजन संहिता पुस्तक खोलना है, वहाँ पर 46 अध्याय पहला वचन। God is our refuge and strength, और प्रभु ही हमारी ताकत और हमारा दृढ़ है, always ready to help in the times of trouble. और हम जब भी चिंता में होते हैं या फिर मुश्किल में होते हैं, प्रभु हमेशा हमें हमारे पास आता है, हमारे निकट आता है हमें बचाने के लिए। So if you think you don't have a safe place in human, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको जो एक सुरक्षित जगह नहीं मिलती है इंसान में, you can always go to God. आपको जो है हमेशा आप प्रभु के पास जा सकते If हो। you're talking about heart's desires, या फिर आप बात करते हो आपके हृदय के सारे इच्छाओं के बारे में, God might have called you to do something, प्रभु ने शायद आपको बुलाया है कुछ करने के लिए, and you might have to kill your desires to do that thing. और शायद आपकी सारी इच्छाओं को जो है आपको मारना है ताकि आप प्रभु की इच्छाओं को पूरा And करें। you'll be like, God, you know I did this for you. What are you going to do for me? और फिर शायद आप प्रभु को ये बोले कि प्रभु नहीं, आप नहीं जानते मैंने आपके लिए ये किया है, आप मेरे लिए क्या करने वाले I'm हो, not living the way I want to live. और मैं वैसे नहीं जी पा रहा हूँ जैसे मुझे जीना है। Then there is a verse for you. तो आपके लिए एक वचन है, Psalms 37:4 says, और भजन संहिता 37 अध्याय और 4वां वचन ये कहता है, Take delight in the Lord, और आपको जो है प्रभु में खुशी लेना है, and He will give you your heart's desire. और प्रभु आपको आपकी सारी आपके हृदय में जो भी इच्छा है वो सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। And finally, about eternity, assurance about eternity. और आखिरकार हम देखेंगे अनंत काल के जीवन के बारे में। You might be like, what if I believe Jesus? Will I really go to heaven? What is going to happen after that? Nobody has come back and said what happens. आप शायद ये कहोगे कि प्रभु पर विश्वास करने के बाद मैं क्या पता मुझे अनंत काल का जीवन मिलेगा, मैं नरक में जाऊंगा या फिर स्वर्ग में जाऊंगा। Then there is a verse for you. फिर आपके लिए एक वचन है, Very famous scripture, Jenny. और बहुत ही प्रसिद्ध वचन है ये, John 3:16. और यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 16 वचन ये कहता है, For this is how God loved the world. और प्रभु ने इस रीति से इस दुनिया से प्रेम किया, He gave His one and only Son, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, so that everyone who believes in Him ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करता है will not perish but have eternal life. वो नाश नहीं होगा लेकिन उसे अनंत काल का जीवन मिलेगा। So this pretty much sums up everything that I'm speaking about. तो मैं जो भी चीजों के बारे में बोल रही हूँ वो सारी चीजें सारांश में यहाँ पर हमको समझ में आता है। All that thing you think this you need to live a full life to its fullest, it's mentioned here. और जो मैं बात करती हूँ कि आपको अपना जीवन जो है पूर्ण रीति से जीना है, तो यहाँ पर वो लिखा गया है। And you might be like, okay,
All the questions are answered, but why should I believe you? और शायद आप ये कहोगे कि हाँ ठीक है, सारे सवालों का उत्तर तो मिला है, लेकिन मुझे आप पर विश्वास क्यों करना है? There are two strong reasons to hold on to the things that I said to you. और यहाँ पर दो बहुत ही बड़े कारण है कि आपको क्यों यीशु पर विश्वास करना है। First one, सबसे पहला, nothing is impossible with God. कोई भी चीज प्रभु के लिए असंभव नहीं है। It's not me who's saying this, Jenny, और ये मैं नहीं कह रही हूँ प्रिया, though I have experienced it in my personal life. हाँ, मैंने अपने जीवन में भी महसूस किया या फिर ये चीजों से होकर गुजरी हूँ, But Bible says this. लेकिन वचन ये कहता है। Matthew 19:26. और मत्ती का सुसमाचार 9वां अध्याय 19वां अध्याय 26 वचन। Jesus looked at them intently and said, और यीशु ने जो उनकी तरफ देखा ध्यान से, humanly speaking, it is impossible. और यीशु ने ये कहा कि इंसान होकर बात करना ये बहुत ही मुश्किल है, But with God, everything is possible. लेकिन प्रभु के द्वारा सब कुछ संभव है। Bible is the word of truth. और वचन तो सच्चाई बोलता है, And when he says it, he does it. और जब प्रभु कहता है तो वो करता है। All these verses, he will do it. और ये सारे वचन जो हमने पढ़े हैं वो जरूर करेगा, Because Numbers 23:19 says, क्योंकि गिनती का पुस्तक 23 अध्याय 19वां वचन ये कहता है, God is not a man, प्रभु जो है एक इंसान नहीं है, so he does not lie. उसका मतलब यह है कि वो झूठ नहीं बोलता, He is not human, और वो इंसान नहीं है, so he does not change his mind. उसका मतलब यह है कि वो अपने सोच को नहीं बदलता है। Has he ever spoken or failed to act? क्या वो कभी भी हारा है या फिर कुछ काम करने से पीछे हटा है? Has he ever promised and not carried it through? क्या उसने कभी भी वाचा दिया और उसको पूरा नहीं किया है? That means our God is a God of truth, उसका मतलब यह है कि हमारा प्रभु जो है सच्चाई वाला प्रभु है, and he does whatever he says. और वो जो भी कहता है वो करता है। So it's like if you're thinking 2020 has been a very year, I have suffered so much, I don't know how will I live my life. यदि आप ये सोचते हो कि 2020 में मैंने बहुत तकलीफ उठाए हैं, मैं कैसे जीने वाला हूँ, मैं कैसे होने वाला है आगे, अगर आप ये सोचते हो So the answer is very simple. तो उसका जवाब जो है बहुत ही आसान है। Just live, बस आप जियो, but by trusting in the Lord. लेकिन प्रभु पर विश्वास करते हुए, Seek him first. और उस पर उसको खोजो पहले, And every aspect that you're thinking in your life will be fulfilled. और हर एक चीज जो आपके जीवन में आप सोचते हो वो सब कुछ पूरा होगा। For if you seek him and his kingdom and his righteousness, यदि आप उसके राज्य को और उसकी सच्चाई को खोजते हो, everything that I mentioned will be added unto you. और हर एक चीज जिसके बारे में मैंने बात किया वो सारी चीजें आपके जीवन में होगी। I would just like to give a short testimony and finish this. और मैं छोटा सा गवाही देना चाहूंगी और फिर खत्म करूंगी। God asked me to move out of my home. और प्रभु ने जो है मुझे अपने घर से बाहर मतलब अपने परिवार से अलग होने को कहा, I have said this many times, और ये मैंने बहुत बार बोला है, but I'll tell now. It's been like almost 8 months. और अभी शायद 8 महीने हो चुके हैं इस बात को, और मैंने बहुत बार बताया लेकिन फिर एक बार बताऊंगी। God has a calling for me, और प्रभु ने जो है मेरे जीवन पर एक बुलावा है, and that needed me to move out of that home. और उस कारण से मुझे जो उस घर से बाहर निकलना था, It was hard for me to leave parents and be independent and look after myself. और ये बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए कि मैं अपने परिवार वालों को छोड़ूं और अब मैं खुद का ख्याल खुद ही रखूं, But obedience matters. लेकिन प्रभु की आज्ञा को पालन करना बहुत ही ज़रूरी था। So I left my home, तो मैंने अपने घर को छोड़ दिया, and I was thinking about all these things that I mentioned. और मैं ये सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी जिनके बारे में मैंने अभी बात की। I was like, what will I do for food and my clothes? How will I provide myself like my parents did? और फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँगी, मैं अपने कपड़ों के बारे में क्या करूँगी, मैं खाने के बारे में क्या करूँगी जो मेरे माता पिता आज तक मुझे देते थे। And there was like a lot of stress and worry in my mind about money specifically. और मेरे दिमाग में बहुत सी चिंता थी, और खास करके पैसों को लेकर। I'm like, I have never managed money. How will I do it? How will I budget? How will I survive? और फिर मैंने ये सोचा कि मैंने कभी भी आज तक
बजट नहीं किया है अपने जीवन में कि मैं क्या खरीदूं क्या नहीं खरीदूं, मतलब मैंने ये सोचा कि मैं कैसे जीऊंगी. And with the salary that I have, my parents actually mocked me that how will you look after yourself, Priya, with this salary? और जो सैलरी मुझे मिलता है उस सैलरी को लेकर मेरे माँ बाप ने बहुत खिल्ली उड़ाई, हंसे वो लोग. उन्होंने ये कहा कि तू कैसे जिएगी ये पगार के द्वारा. Do you think it's enough, Priya? You can do much better. Go for a job in an airport or go for a management job somewhere else. और उन्होंने ये कहा कि क्या प्रिया तू इसमें कुछ ऐसे खुश रह पाएगी, तो इससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकती है, क्यों ना तुम जॉब देखो एयरपोर्ट में या फिर मैनेजमेंट कंपनी में. But I knew what is true living. लेकिन मैं जानती थी कि सच्चाई में जीना क्या होता है. Like Galatians 2:20 said, जैसे गलतियों का किताब 2 अध्याय 20वां वचन ये कहता है, I crucified my old self. और मैंने अपना जुना जीवन या फिर पुराना जीवन जो है उसे क्रूस पर चढ़ा दिया. And by obeying Christ Jesus, I gave my life to him. और प्रभु का आज्ञा पालन करते हुए मैंने एक नया जीवन की शुरुआत की. And I knew trusting him and obeying him will let me live my life to the fullest. और मैं जानती थी कि उस पर विश्वास करते हुए और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए सच में मेरा जीवन कितना अच्छा होगा. And believe me, church, even if my money is over, और विश्वास करना कलीसिया, यदि मेरा पैसा खत्म भी होता है, somehow God keeps on providing in abundance. और कैसे न कैसे करके प्रभु जो है मुझे मदद करता ही है आर्थिक रूप में. And I don't go asking for it. और मैं पूछती नहीं रहती उसको. Just God knows, and it comes my way like 2,000, 3,000, and I'm like, why are you blessing me? It's like, just take it and go. प्रभु बस जानता है इन चीज़ों को, और मुझे 2,000, 3,000, 4,000 बस ऐसे मिलते हैं, और मैं सोचती हूँ कि प्रभु ऐसे कैसे. तो प्रभु ये कहता है कि बस ले और आशीषित होना. There were things that I wanted to buy when I lived with my parents. और ऐसी कुछ चीज़ें थी जो मुझे खरीदनी थी जब मैं अपने माता पिता के साथ में रहती थी. I had money and I had my parents to provide me. और मेरे पास पैसे थे और मेरे माता पिता थे ताकि वो मुझे मदद कर सके उस चीज़ों के But लिए. the funny thing is that I couldn't afford it back then. लेकिन मजाकिया बात यह है कि तभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं खरीद सकती हूँ. But now I have all those things. लेकिन अभी मेरे पास में वो सारी चीज़ें हैं. I have been to a trip recently. और मैं हाल ही में एक ट्रिप पर गई. And people who go traveling, they know how much they have to spend. और जो लोग घूमने जाते हैं उनको पता है कि कितना खर्चा आता है But घूमते हुए. God has blessed me with people who actually sponsor for me and who like things just happen and I enjoy myself. और अभी ऐसा हो रहा है कि प्रभु ऐसे लोगों को मेरे जीवन में डालता है जो लोग मेरा खर्चा उठाते हैं और बस चीज़ें होती जा रही है और अद्भुत हो रहा है. I will brag and say this. और मैं सच में इस बात को लेकर बहुत ही बढ़ावा करूंगी. Because I am trusting in the Lord. क्योंकि मैं प्रभु पर विश्वास करती हूँ. And I crucified my old self. और क्योंकि मैंने अपने पुराने जीवन को उस क्रूस पर चढ़ाया है. And letting Jesus Christ to operate through me. और मैंने न्योता दिया है या फिर यीशु को अनुमति दी ताकि वो मेरे जीवन में और वो मेरा जीवन चलाए. I am living my life to the fullest. मैं अपना जीवन बहुत ताइट्स में जी रही हूँ. And I am assured about eternity. और मैं जानती हूँ कि अनंत काल का जीवन And I मुझे am मिलेगा. blessed beyond anything you can imagine. और आप शायद सोच भी नहीं सकते हो मुझे उतनी आशीषें मिली है. And I've never been so happy in my life. और मैं अपने जीवन में कभी इतना खुश नहीं थी. So I would like to encourage you. तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी. If last 20 days or 25 days of this new year has been bad for you, यदि इस नए साल में पिछले 20 दिन या फिर 25 दिन अगर आपके लिए खराब थे, don't wait for next new year. और इंतजार नहीं करना अगले नए साल के लिए. Or wait for first of next month. या फिर अगले महीने के पहले तारीख के लिए इंतजार मत करना. To start something new and start trusting in God. कुछ नया शुरुआत करने के लिए या फिर प्रभु पर विश्वास करने के लिए. Because every day is a new year until next date of that year. क्योंकि हर दिन जो है एक नया दिन है उस अगले तारीख के लिए. Because every single day God has made it and you have to be glad and rejoice in it. क्योंकि हर एक दिन जो है प्रभु ने बनाया और आपको उसमें संतुष्ट होना है. So decide today. तो आज ही निर्णय करना. If it's bad before, that's fine, but it's going to be good and better and best. लेकिन यदि वो पहला बुरा था तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन और भी अच्छा होता जाएगा. Live your life, और अपने जीवन को जियो, but God dependent, not independent. लेकिन प्रभु पर निर्भर होते हुए अपने आप पर नहीं. So if you live a God dependent life, तो यदि आप प्रभु पर निर्भर होते हुए अपना जीवन जीते हो,
you will have no words to say after that. और आपके पास में कोई शब्द नहीं रहेंगे उसके बाद बोलने के All लिए। those doors will be open that were closed to you. और वो सारे दरवाजे जो आपके लिए बंद थे वो खुल जाएंगे। You will see new opportunities coming your way. और आप देखोगे कि नए नए अवसर आपके जीवन में Your आएंगे। heart's desire will be fulfilled. और आपके हृदय में जितनी भी इच्छाएं वो पूरी होंगी। Stress and worry will run away from you. और सारे चिंताएं जो आपसे दूर भागेंगे। So today you take a decision. तो आज की शाम क्यों ना आप निर्णय लें Ask forgiveness to God और प्रभु से माफी मांगो, for disobeying Him क्योंकि आपने उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं if you किया। did so. अगर आपने ऐसा किया है तो। And crucify your old self, और क्यों ना आप अपने पुराने जीवन को उस क्रूस पर चढ़ाओ। your doubt, your fear, your anxiety, your worry, everything. Just crucify it. आपका चिंता, आपका शक, वो सब कुछ जो है उस क्रूस पर चढ़ा दो। And be a new being. और क्यों ना आप एक नए व्यक्ति बनो। And let Christ operate through you. और ध्यान देना कि यीशु जो है आपके जीवन को चलाए। Let's all close our eyes and pray. तो क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Lord Jesus, I give this time into your hand. प्रभु यीशु, हम इस समय को जो है आपके हाथों में सौंपते हैं। Thank you for speaking to us through words. धन्यवाद इन वचनों के द्वारा हमसे बातें करने के Lord, लिए। I pray whoever is touched by this word, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो कोई भी इस वचन के द्वारा आशीषित पाया या फिर उनका दिल आपने छुआ, let them be encouraged in their spirit. मदद करना ताकि वो लोग आत्मा में जो है आगे जाए। And let them decide in their heart to live by faith and trust in you. और मदद करना ताकि वो लोग अपने हृदय में निर्णय ले कि वो आप पर विश्वास के द्वारा आगे चले। And you bless them with the life that is of abundance and blessing. और आप उन्हें मदद करना ताकि उनको एक अच्छा जीवन मिले, आशीषों वाला जीवन मिले। In Jesus' name I pray. और यीशु नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। If anyone is watching this video for the first time, यदि इस वीडियो को कोई पहली बार देख रहा है or you have watched it many times but you don't know Jesus, या फिर आपने बहुत बार देखा है लेकिन आप यीशु को नहीं जानते हो and you want to know Jesus more, और आप यीशु को अधिक जानना चाहते हो, you can repeat this prayer after me क्यों ना आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलें and invite Jesus into your heart. और यीशु को अपने जीवन में न्योता दो। Dear God Jesus, प्यारे यीशु, I ask forgiveness for all my sins. और मेरे सारे पापों के लिए मैं माफी मांगता हूँ। Forgive me, Jesus, मुझे माफ करना and wash me clean. और मुझे साफ धोना। Thank you for giving your life on cross for me. और धन्यवाद पिता कि आपने अपना जीवन उस सूली पर चढ़ाया। And thank you for coming back to life for me. और धन्यवाद यीशु कि आप फिर एक बार जी उठे Accept me as your child. और मुझे अपना बेटा या फिर बेटी बनाकर अपने घर में लेना And include me in your family. और मुझे अपने परिवार में अपनाना। Today I decide to follow you, और आज की शाम मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं आपके पीछे चलूंगा, leaving my old self behind मेरा जुना जीवन जो है पीछे छोड़ते हुए, and being a new person in Christ. ताकि एक नया व्यक्ति बनूं आप में। In Jesus' name I pray. यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। If you have prayed that prayer for the first time, यदि आपने इस प्रार्थना को पहली बार बोला है, congratulations. आपको बहुत बहुत बधाई। You are a part of Jesus Christ's family. और आप जो है यीशु के परिवार का एक हिस्सा हो। And you will see a link in the comment section. और आप कमेंट सेक्शन में जो है एक लिंक पाओगे, Click on that link क्यों ना आप उस लिंक पर क्लिक and you करें can give your name and number, और आप अपना नाम और अपना संपर्क नंबर जो है दे सकते and our हो। volunteers will help you understand more about Jesus. और हमारे लोग जो है आपके संपर्क में रहेंगे ताकि आपको अधिक जानकारी दे यीशु के बारे में। We'll see you next Sunday. और हम अगले सप्ताह मिलेंगे Till then, take care और तब तक आप अपना ख्याल रखना and God bless you. और प्रभु आपको आशीष करे।